So welcome to online classes of DEE 310. पूरा बोर्ड है क्या है? पूरा बोर्ड है. चलो. Date is 16th. So welcome to the online classes of DEE 310. Network analysis. We will start. It will be taught by Anand Sinha. My name is Anand Sinha. Today is your first lecture. So in this network analysis there are 5 units. Unit 1 will be your networks. Unit 1 is your network. In this you will study 2-port network, 2-port parameters, interconnection of 2 ports, equivalent networks, symmetrical networks and unsymmetrical networks. If you want, if you do not have the syllabus, you can contact me. I have made a new email ID with networksdha@gmail.com. If you wish to contact me, you can contact me at this email ID. It is networksdha@gmail.com. Send only one mail consisting of all how many students you are, 300 or 400, whatever students, how much you are. Make one mail and send it to me. I will send a reply to all. I will send you syllabus, whatever things you need. You can contact me at this email ID, that is networksdha@gmail.com. So you will have unit 1, that is networks, which is 2-port network, 2-port parameters, interconnection of 2 ports, equivalent networks, symmetrical networks, asymmetrical networks. Unit 2 will be of network theorems. In this you will study Telegon's theorem, superposition theorem, substitution theorem, Thevenin and Norton's theorem, reciprocity and maximum power transfer. Unit 3 is your filters. In this you will study application of filters in communication system, concept of low pass, high pass, band pass, Butterworth, constant filters, M-derived filters and K filters. In unit 4 will be your transmission lines and the implications, shapes of different types of transmission lines, distributed constant of a transmission line, equivalent circuit of an infinite line, T and pi type representation of a section of line. Unit 5 will be transmission line equation, expression of voltage, current and impedance at a point on the line for lines with and without losses, input impedance of an open and short circuited line and its graphical representation. The suggested readings over here in this syllabus is a very good book, that is Network Analysis by Van Valkenburg. This is the very good book. It is a foreign author name, but I feel that it will be little tougher for you to understand at present. I will suggest you to refer engineering circuit analysis by
Hayt and Camerly. I think it is a 8th edition and it is a very good book. You can go through this book. So we start today. We will discuss, first we will discuss some of the preliminaries today. That is, we will discuss what is a circuit. पहले हम देखेंगे कि हम जो ये आज हम पढ़ेंगे, that is network analysis. In this, first we will start. First we will start with what is a circuit. ठीक है, so we say that circuit is a combination of electrical elements. Combination of electrical elements is known as a circuit. इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है electrical elements, आपके पास resistance, inductance, capacitance, relays, कुछ भी आपके पास है. A combination of these electrical elements is known as a circuit. Then what is a network? इस सर्किट और नेटवर्क जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस नेटवर्क एनालिसिस में. और जो बहुत बड़ा डिफरेंस वो ये है कि सर्किट जो होता है वो बनता है एक क्लोज्ड पाथ से. क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है कि विल स्टार्ट एट अ पॉइंट एंड विल एंड अप एट द सेम पॉइंट. जैसे कि आपके पास यदि आप दयालबाग आते हैं और आगरा कैंट से आते हैं तो आपकी बस जो है आगरा कैंट से चलती है और दयालबाग आती है और दयालबाग से वापस आगरा कैंट पे उसी पॉइंट पर चली जाती है. देन वी से दैट इट मे बी कॉल्ड एज अ सर्किट और इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड पाथ. और जो नेटवर्क से होते हैं नेटवर्क्स में क्या होता है, इट मे कंसिस्ट अ क्लोज पाथ और इट मे नॉट कंसिस्ट अ क्लोज पाथ. फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है आपके पास ये नेटवर्क है, ये दिस इज अ नेटवर्क. विच हैज अ क्लोज्ड पाथ. क्लोज्ड पाथ मतलब क्या है, इसमें एक क्लोज्ड पाथ है. इफ यू स्टार्ट एट दिस पॉइंट इट विल डेफिनेटली एंड अप अगेन एट दिस पॉइंट. And so a network, it consists of the whole thing is called a network. इसमें closed path भी है और open path भी है. ठीक है, तो हम लोग जो है इस नेटवर्क में what we will study is, what will we do is, नेटवर्क में दो काम हम लोग करते हैं, that is analysis एंड सिंथेसिस. ठीक है, एनालिसिस जो है आपका टाइटल है DW310 का, दैट इज नेटवर्क एनालिसिस हम पढ़ेंगे. और इसमें सिंथेसिस जो पार्ट है वो आप लोग यदि आगे फर्दर पढ़ाई करते हैं एंड गो इनटू इंजीनियरिंग, वहाँ पर यू विल स्टडी सिंथेसिस. ठीक है, तो अब दोनों में फर्क क्या है, एनालिसिस सिंथेसिस में फर्क क्या है कि सपोज यू हैव दिस नेटवर्क
and suppose you have a load resistance, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सर्किट जो है इट में कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स, जिसे हम एक्साइटेशन भी कह सकते हैं। ये हमारा डीसी सोर्स है। हम लोग जो है डीसी सोर्स के बारे में बात करेंगे नेटवर्क एनालिसिस में। एसी सोर्स आप लोगों के पास नहीं है। आपका जो नेटवर्क एनालिसिस है बहुत सिंपल है ये, और जो आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो कि एग्ज़ाम्स में इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी तरह से इसको समझना होगा, ठीक है। तो आपका ये सोर्स है, आई कैन से दिस ब्लॉक टू बी अ नेटवर्क, एंड यहाँ पर ये लोड है जहाँ पर कि हम अपना रिस्पॉन्स भी हम चाहें तो देख सकते हैं, दैट इज हाउ मच इज द वोल्टेज, हाउ मच इज द करंट flowing through this conducting material, that is R। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि what is the difference between analysis and synthesis। एनालिसिस पार्ट में क्या होता है, हम ये एनालिसिस वी गेट अ डेफिनेट सोल्यूशन, यहाँ पर हमें वी विल गेट अ सोल्यूशन एनालिसिस में। सिंथेसिस में वी मे गेट अ सोल्यूशन और वी मे नॉट गेट अ सोल्यूशन। तो फ़र्क क्या है, एनालिसिस में क्या होता है कि हम आपके पास नेटवर्क है, ये सपोज दिस इज़ अ नेटवर्क, सोर्स है, और हम रिस्पॉन्स जो है हम यहाँ पर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इसमें इफ़ यू नो द एलिमेंट्स ऑफ वोल्टेज रेजिस्टेंस, तो हम निकाल सकते हैं यूजिंग योर ओम्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, कि what is the तो यूजिंग द ओम्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हम ये निकाल सकते हैं व्हाट इज द रिस्पॉन्स। तो मेन डिफरेंस क्या है, सिंथेसिस में क्या होता है कि यू डू नॉट नो द नेटवर्क, आपको नेटवर्क नहीं मालूम होता है, यू नो द रिस्पॉन्स। मैं ऊपर ले लेता हूँ, आप चिंता योगेश चिंता मत करो, मैं ऊपर ले लेता हूँ, आई विल टेक इट अबव, आई विल कीप इट टिल हियर, ओके। मैं यहाँ तो ले लेता हूँ, ठीक है, आप सेट कर लो एक बार में, मैं कोई बात नहीं, ठीक है। तो एनालिसिस में क्या होता है, यू हैव अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ, फिलहाल हमारे केस में आर है, आपके पास ये सोर्स है, और हम एक रिस्पॉन्स देख लेते हैं। सिंथेसिस में क्या होता है, यू डू नॉट नो द नेटवर्क, आपको रिस्पॉन्स पता है कि हमें क्या रिस्पॉन्स हमें चाहिए, और इसमें सोर्स भी पता है। तो सिंथेसिस पार्ट इज अ लिटिल टफर, उसमें हमें निकालना पड़ता है दिस नेटवर्क, और ऐसे कई प्रोसेस होते हैं निकालने के लिए। आपको रिलायबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ता है इसमें, उसके बाद नेक्स्ट हमें इसको हम लोग उसको यदि ये टेस्ट पास करता है तो हम लोग नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, विच में कंसिस्ट ऑफ LC नेटवर्क और RC नेटवर्क, कई नेटवर्क्स होते हैं। जो भी आपको नेटवर्क चाहिए हम उसको बना सकते हैं। खैर, दिस इज नॉट ए पार्ट, यू हैव अ वेरी सिंपल, दैट इज योर एनालिसिस पार्ट, एंड देयरफॉर जो टाइटल है आपका दैट इज नेटवर्क एनालिसिस। इंजीनियरिंग में जाओगे, यू विल स्टडी नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो आज हम लोग जो है
एक बेसिक टर्म्स सब डील करेंगे। हम लोग लेते हैं चार्ज, वोल्टेज, एनर्जी, ठीक है। तो इन दिस सपोज यू हैव अ इनफाइनिटेसिमल चार्ज dq. If you have a infinitesimal charge, elementary charge dq through a potential difference of voltage V, so the energy or the work done will be dW is equal to voltage into charge. So I can write voltage is equal to energy upon charge. And what is power? Power is rate of change of energy. You have power given by rate of change of energy. I can multiply by dq and divide by dq, and I can write this to be which is equal to, what is this? This term is your V, and what is this? This term is your I. So we get power, जो आपको पता है, power is equal to V into I. So you get power is equal to V into I. And suppose you know that according to Ohm's law, V is equal to I into R. I can write power V की जगह हम IR पुट करते हैं into I, which is equal to I square into R. And at any time the total work done W is equal to, at time t it is I square RT, where I is here constant. So this is your charge, voltage and energy. This is your expression for power. Power absorbed at any point, which is V into I. हम लोग इस्तेमाल करेंगे. Another important expression will be P is equal to I square R. ठीक है, ये सारे टर्म्स जो हैं वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे. तो आपके पास जो हम लोग जो कंपोनेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं, RLC होते हैं, इसे हम पैसिव एलिमेंट्स कहते हैं. हम पैसिव क्यों कहते हैं? बिकॉज ये लोग जनरेट नहीं कर सकते. जो भी होगा इसमें डेसिपेशन होगा या स्टोरेज होगा. रेजिस्टेंस है, उसमें डेसिपेशन होगा. डेसिपेशन कैसे होगा? आपका आर के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी
is converted into heat energy. और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इररिकवरेबल प्रोसेस है। ये एक बार जो आपका ये लॉस हो गया आर के केस में, एल और सी के केस में वेल इट स्टोर करता है ये। तो व्हाट पॉइंट ऑफ कंसर्न ओवर हियर इज वी विल स्टडी ओनली, आप लोगों को जो सिलेबस में खाली आ रहा है, एंड द वोल्टेज एंड करंट, हम इसे एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरेट कर सकता है, ये है कि नहीं, वोल्टेज एंड करंट जो है जनरेट कर सकता है। और इसका सिंबल जो है वो इट इज़ V। कोई किताब इसको ऐसे लेता है, कोई किताब इसको ऐसे लेता है। ये सारे जो है हम इसे इंडिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। इस पॉइंट पे मैं एक और इंट्रोड्यूस करता हूँ, दैट इज डिपेंडेंट सोर्सेज भी होते हैं, ये डायमंड फॉर्म में होते हैं, इट इज़ प्लस माइनस। आप इन सारे को आप डायमंड से रिप्लेस कर सकते हैं। ये डायमंड वाले जो होते हैं ये होते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेज भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। यू हैव अ सिंपल इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड रेजिस्टेंस। Next is sources. सोर्सेज जो होते हैं वो वोल्टेज सोर्सेज होता है और करंट सोर्सेज होता है। तो वोल्टेज सोर्सेज में क्या है, हाँ वोल्टेज सोर्सेज की बात करें तो आपका लेट्स टेक, पहले हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं। पहले सिंपल ओम्स लॉ, विल स्टार्ट फर्स्ट विद ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या है, आपका ये रेजिस्टेंस R है, इट इज V। जब भी हम वोल्टेज शो करते हैं, ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरह ध्यान रख लो कि जब भी हम वोल्टेज शो करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरह शो करना, और करंट यदि हम शो करते हैं तो डायरेक्शन हमेशा दिखाना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, वोल्टेज शो कर रहे हो तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव शो करो इसका, और करंट शो कर रहे हैं, ये हम लोग जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हम साइन कन्वेंशन से हिसाब से हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इट सेज दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस across a conducting material, I'll repeat, a potential difference across a conducting material। तो potential difference क्या है, it is V। potential difference across a conducting material is directly proportional to the current flowing through it। So and V is equal to I into R, where R is your proportionality constant। And if you plot this graph, it is a first quadrant, this is a voltage V, this is I, and you get a
straight line. This straight line slope will give you your constant r. तो यहां पर एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज लीनियर. हम जो है बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, तो हम थ्रू आउट हमें अपने सिलेबस में वी विल एज्यूम कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो लीनियर है. आप ग्राफ में भी देख सकते हो, यू गेट अ स्ट्रेट लाइन. यदि रेजिस्टेंस लीनियर नहीं है, जैसे कि इसके भी हैं एग्जांपल्स हैं, आपके थर्मिस्टर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यदि आप उसके ग्राफ प्लॉट करोगे तो इट गोज समवॉट दिस वे, और ये जो है इस तरह से ग्राफ मिलता है. कब? जब आपका एलिमेंट जो है वो लीनियर नहीं है. जब लीनियर होगा यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पूरे सिलेबस में वी विल टॉक ऑफ अ लीनियर रेजिस्टेंस. ठीक है. सो नेक्स्ट वी कम टू the, and we have power which is given by V into I, which is I square R, and total work done at any point is I square R into T. ये सब सारे important expressions है. Next is sources. Sources में you have a voltage source and current source. तो हम पहले वोल्टेज ले लेते हैं. You have this voltage source which is a ideal voltage source. अब आइडियल तो खैर कोई चीज़ होती नहीं है इस दुनिया में. तो सपोज वी हैव अ वोल्टेज सोर्स V, और यदि आइडियल है तो इट इज सपोज टू जनरेट इनफिनिटेसिमल वोल्टेज टू द लोड irrespective of what the load is. It should generate, उसको देना चाहिए वोल्टेज इनफाइनाइट टाइम देना चाहिए उसको, और कुछ भी आपके पास लोड हो उसको देना चाहिए. लेकिन ऐसा केस जो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप यदि आइडल केस में आप कंसिडर करेंगे, सपोज दिस इज द वोल्टेज V अक्रॉस इट, तो आइडल में क्या होता है, करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है. तो आइडल के केस में इफ यू प्लॉट, इट इज V वर्सेस I, और जैसे जैसे करंट आपका इंक्रीज होगा वोल्टेज रिमेन्स अ कांस्टेंट. ठीक है ना. लेकिन प्रैक्टिकली हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली होता क्या है, वी गेट अ ड्रॉप. क्यों होता है ड्रॉप? ये इट इज बिकॉज ऑफ अ इंटरनल रेजिस्टेंस R. इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द बैटरी. तो एट एनी पॉइंट यदि आप टर्मिनल वोल्टेज VT आप देखना चाहें तो VT जो होता है, इट इज अ फॉलिंग स्ट्रेट लाइन. और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगा, इट इज -V प्लस I इंटू R प्लस VT. सो यू हैव VT इज इक्वल टू V minus IR, and what is this is your
IR. This difference is your IR. And for this to be a straight line, we assume or we say that resistance is a linear element, R is a linear element, and so we get a straight line. इसी तरह से आपके पास करंट सोर्स होता है, तो यदि हम एक चीज़ और है यहाँ पे कि आप यदि प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ अ वोल्टेज सोर्स आप शो करना चाहें तो इट इज़ अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि हम उसको स्मॉल r से हम रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज योर करंट सोर्स. करंट सोर्स में क्या है? दिस इज योर आइडियल करंट सोर्स, हम एरो से शो करते हैं. An ideal current source is supposed to generate a infinite amount of current irrespective of what the load is. This is the current I. यदि हम इसको प्लॉट करेंगे, V is the voltage, so you should get a, this is I versus V. जो वोल्टेज सोर्स था वो V वर्सेस I था, दिस इज I वर्सेस V, एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन. So as the voltage V increases, the current I remains constant, but practically this is not the case. You get a falling. It is because of the internal resistance of current source which is in parallel. तो आप कभी भी एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को मॉडल करना चाहें तो दिस इज योर प्रैक्टिकल करंट सोर्स, एंड so this is, if this is your I and current flowing is small I, suppose हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं I में, and another current is flowing over here, so I can write I is equal to V by R plus I. So what is this current I? I is equal to I minus V by R. This is the equation of a straight line, and we assume that your R is a linear and therefore we get a straight line falling. This is your ideal case for an ideal current source. This is your practical current source. So we have dealt with resistance, sources. Next, the most important is your laws, that is Kirchhoff's current law. अब हम लोग एनालिसिस तरफ बढ़ते हैं कि आपको एनालिसिस करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज KCL, KVL and definitely the Ohm's law. आपको ये तीनों चीज चाहिए होगा for your network analysis. We'll start
First is your Kirchhoff's current law, which says that at any particular node, if you have a current I1, I2, I3, सपोज कोई भी एक नोड है, इसमें क्या हो रहा है, दो करंट्स एंटर कर रहे हैं I1 एंड I2 और तीन करंट्स लीव कर रहे हैं, और किसी भी पॉइंट पे आपका इस नोड पे यदि 5 करंट आ रहा है, यदि यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो बाहर भी 5 ही जाना चाहिए, कैसे भी जाए, 1 2 2 चला जाए. तो वी से दैट Kirchhoff's current law says that current entering is equal to current leaving at that node. Sir, बोलो बेटा. sir, I want to ask what is the difference between node and junction? क्या चीज? What is the difference between node and junction? दोबारा बोलो बेटा, पास से बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा है. Sir, what is the difference between node and junction? Node and junction. मैसेज टाइप कर दो, मैसेज टाइप करके भेजो. What is difference between node and junction? कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है. नोड पे भी क्या कहते हैं आप नोड को? नोड को हम कहते हैं कि एक पॉइंट पे यू ज्वाइन 2 एंड मोर एलिमेंट्स, और जंक्शन में भी क्या होता है, वी ज्वाइन 2 और मोर एलिमेंट्स. तो कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है बेटा. ओके सर. तो you have this node and current is entering is I1 plus I2. So I can write this to be I1 plus I2 minus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. And I can write this to be summation of I is equal to 0. This is your very important Kirchhoff's current law. That is, इसे हम कहते हैं algebraic sum of all the currents at a particular node is equal to 0. और यहाँ पर हम प्रूव करते हैं, that is I1 plus I2 minus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. Next is your KVL. KVL में क्या होता है? You have a network. Suppose this is R1, this is R2, this is R3, and suppose the voltage is V1, positive, negative. Suppose the voltage is V2 over here, positive, negative. And if we take this path, पाथ में क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पाथ? पाथ में होता है कि उसके नोड्स जो है वो रिपीट नहीं होते. यहाँ पर भी नोड है, ये भी नोड है, उसके नोड्स रिपीट नहीं होते. दैट इज सेड टू बी अ पाथ. और लूप होता है कि इफ द पाथ इज अ क्लोज्ड लूप, वी से टू बी अ लूप. तो यहाँ पर KVL के लिए क्या है? आई कैन राइट V is equal to plus V1 plus V2
I can also write V minus V1 minus V2 is equal to 0, or I can write summation of V is equal to 0, and this is your very important, that is Kirchhoff's voltage law, which says that algebraic summation of the voltages is equal to 0. ठीक है. Next, very important is your current division and voltage division law. Voltage division and current division, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे. So we will start with the voltage division. It is a this is a voltage V. This is R1, this is R2, and suppose the voltage is V1 over here, suppose the voltage is V2 over here, voltage is V. So by applying the KVL, I can write V is equal to V1 plus V2. And what is V1? The current I. Series है तो current will be same, that is I. So it is I times R1. Ohm's law over here is current I into R1. यहाँ पर भी current same है, Ohm's law हो गए, तो it is I times R2, which is also equal to I times R1 plus R2. So what is I? From here I can get I is equal to V by R1 plus R2. तो करंट डिवीजन रूल में क्या होता है कि इफ यू वांट टू फाइंड वोल्टेज V1 डायरेक्टली, आपको यदि वोल्टेज V1 डायरेक्टली निकालना है तो रूल सेज दैट V1 इज I times R1. What is I? I is V times R1 plus R2 into R1. तो वो कभी भी निकालना हो तो you have this V1 is equal to V times R1 into R1 plus R2. Similarly, for V2, what is V2? V2 is I times R2. And what is I? I is V times R1 plus R2. So you have V2 is equal to V times R2 whole divided by R1 plus R2. तो ये ध्यान देना, वोल्टेज डिवीजन रूल जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ सीरीज सर्किट. आपके जो रेजिस्टेंस है वो प्योरली सीरीज में होना चाहिए, ठीक है. और यू कैन हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस. आपके पास एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 10 है, तो सपोज यू हैव 10 रेजिस्टेंस और आपको 9th रेजिस्टेंस में फाइंड करना है. तो जनरल फॉर्मूला इज V K is equal to a voltage, total voltage V, this is R K whole divided by R1 plus
R2 plus R3 अप टू Rn। n क्या होगा? फॉर एग्जांपल 10 आप रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो n आपका 10 होगा। 9th पे निकालना है तो k आपका 9 रहेगा। तो इस तरह से आपके पास कितने भी रेजिस्टेंस हो, सीरीज में हो, तो दिस इज द वेरी इफेक्टिव वोल्टेज डिवीजन रूल which generally is given by this formula: V of k is equal to V into Rk whole divided by R1 plus R2 plus R3 up to Rn। ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली यू हैव अ करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल में क्या होता है? कि आपके पास ये रेजिस्टेंस है R1, current is I, it is given by I1, it is given by I2, and at a particular node हम यहाँ पर KCL अप्लाई करते हैं, which is I is equal to I1 plus I2। हमें KCL से मिलता है current entering is current leaving, I is I1 plus I2, and suppose the voltage is over here is V, so I can write I is equal to V, I1 में it is V by R1, I2 में it is V by R2, and I can write this to be R1 plus R2 whole divided by R1 R2, or I can write what is V? V is equal to I into R1 R2 whole divided by R1 plus R2। तो करंट डिवीजन रूल में क्या होता है कि आपको I1 निकालना है। What is I1? I1 is V by R1. What is V? It is given by I into R1 R2 whole divided by R1 plus R2, I by R1. So this R1 R1 gets cancelled. What remains is it is equal to I into R2 whole divided by R1 plus R2. Similarly, for current division rule for I2, what is I2? I2 is given by V by R2 by Ohm's law. And what is V? We have found out V is equal to I into R1 R2 whole divided by R1 plus R2. So what is, we get this to be I, this is R2, this R2 and R2 gets cancelled. What we get is I into R1 whole divided by R1 plus R2. So in general, if you have n number of resistance in parallel, ध्यान देना बेटा, for voltage division it is series। हमने क्या लगाया था? KVL लगाया था। यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंसेस आर प्योरली इन पैरेलल। हम क्या लगाए थे? हमने यहाँ पर हमने KCL लगाया था हमने। तो in general for if you have n number of
resistance in parallel, I can write IK is equal to total current I 1 by RK whole divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 up to 1 by Rn. ठीक है, ये एक जनरल करंट डिवीजन रूल है. What you will use is this simple formula, that is I1 is I into R2 by 1 plus R2 and I2 is I into R1 divided by R1 plus R2. ठीक है, तो ये आज के क्लास में हमने कुछ प्रीलिमिनरी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक चार्ज से हमने स्टार्ट किया था. चार्ज से वोल्टेज, पावर, टोटल वर्क डन, फिर हमने आर रेजिस्टेंस लिए थे, ओम्स लॉ डिस्कस किया हमने, फिर हमने वोल्टेज सोर्सेस, आइडियल वोल्टेज सोर्सेस, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस, आइडियल करंट सोर्सेस, प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस, फिर हमने एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट्स, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ, करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल. तो ये हमने बहुत ही इंट्रोडक्शन पार्ट हमने आज डिस्कस किया है. एंड आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो बेटा, फील फ्री. मैंने आपको पहले भी फर्स्ट क्लास में ही जो लेट ज्वाइन किए हैं, आई कैन गिव यू दैट इट इज़ द ईमेल जो मैंने खास क्रिएट किया है. इट इज़ नेटवर्क्स DHA @gmail.com है. इस ईमेल आईडी पे आई एम अवेलेबल फॉर 24 आवर्स. आप कभी भी मेरे को आप मेल कीजिए और आप जो भी आपके डाउट्स हैं कम फॉरवर्ड, आपके डाउट्स को मुझे क्लियर करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल टेक प्रॉब्लम्स, हम लेंगे, इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे हम, और इसके KCL, KVL, और आपके जो किताब में भी इफ़ यू सी, किताब आपके पास जो है हिट एंड कैमिली किताब भी आपको चाहिए तो आई कैन शेयर इट. मेरे पास एक किताब का भी है, हिट एंड कैमिली किताब है ये. आई कैन शेयर यू विद दिस किताब बुक. ये हिट एंड ये हिट एंड कैमिली बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया किताब है ये. मेरे पास कई किताबें हैं, आपको हिट एंड कैमिली है, जॉन बर्ड है, लियोनार्ड बॉब्रो है, कई किताबें हैं. लेकिन हिट एंड कैमिली जो है वो ठीक है, मतलब वो नॉर्मली आपके लाइब्रेरी में भी है, और ना भी लाइब्रेरी में आप परेशान मत हो, आपको घर पे ही आपको मैं ई बुक सेंड कर सकता हूँ, ये वाला आप कभी आप, लेकिन मेल मुझे कोई एक करना है, एक मेल में सबका ईमेल आईडी बना दो, सबका डाल दो. कोई कैप्टन है, कोई भी इसको लो, काम करो, क्योंकि इफ़ मुझसे कहोगे कि ये सब पे भेजना तो मुझे बहुत टाइम लगेगा उसको अपलोड करने में सारे, क्योंकि फाइल थोड़ा बड़ा है और मैं वो हर एक को नहीं अपलोड कर पाऊँगा बेटा. तो एक ईमेल में सबके बना के कोई एक कैप्टन है जो भी क्लास का ये काम करो, एक ईमेल आईडी लो, उसमें सबके जितने 300-400 जितने बच्चे, 500 जितने बच्चे हैं सबका उसमें बना दो एंड सेंड इट टू मी. आई विल सेंड यू द वन सिंगल फाइल ऑफ हिट एंड कैमिली, सिलेबस है, सब कुछ मैं भेज सकता हूँ. हेलो, ठीक है. सो आई होप टाइम आपका हो गया. टाइम हो गया सर, योगेश सर? तो विल स्टॉप फॉर टुडे एंड टुमारो विल स्टार्ट प्रॉब्लम्स जितने भी हमने लिए हैं, विल स्टार्ट द प्रॉब्लम्स ऑन इट.
और एंड फर्स्ट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं विद यूनिट 2। आपकी किताब में भी पहले यूनिट 2 आता है, नेटवर्क थ्योरम्स हैं, उसके बाद बहुत आगे जाके आपका 2 पोर्ट नेटवर्क आता है। तो सिमिलरली हम भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, दैट इज़ वी विल टेक फर्स्ट यूनिट 2 एंड देन आई विल टेक यूनिट 1।